Hi student, here I am with the second part of the chapter Anatomy. Till now we read how Dr. Sadao, who was a doctor, a successful surgeon and a scientist, one day a prisoner of war washed ashore at his doorstep. Now the dilemma was to hand him over as a prisoner of war to the army or to take care of him because he was injured, and as a doctor it was his duty to save his life. So he heard the voice of his conscience and he took the man inside his house and operated upon him. And now I am starting from the last few lines. This man will live in spite of all, he said to Hannah and sighed. It means after the successful operation, he told his wife that now this man will not die, he would live. The young man woke so weak, his blue eyes so terrified when he perceived where he was. It is a page number 36. So now after the operation, when the boy came into senses and he realized that where he was, he got afraid. That Hannah felt compelled to apologize, and Hannah felt so realized his you can say situation, which was quite miserable, and she wanted to feel sorry for him. She herself served him and she took great care of him. She served him, for none of the servants would enter the room, and because nobody was taking care of the man, तो उसने खुद से उसकी केयर की, उसको अपने हाथ से खाना खिलाया. When she came in the first time, she saw him summon means collect his small strength to be prepared for some fearful thing. When she came in the first time, it means after the operation, जब वो पहली बार रूम में आती है, तो शी कुड परसीव, शी कुड रियलाइज़ कि किस तरीके से जो डरा हुआ यंग मैन है वो अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करता है और रेडी होता है कि अब उसके साथ और क्या बुरा हो सकता है. Don't be afraid, she begged him softly, and she requested him that there is no need to be afraid. And the boy got surprised that a Japanese was speaking English. I was a long time in America, she replied, and then she replied that long before she used to be in America, कि वो अमेरिका में वहाँ रहती थी. She saw that he wanted to reply, और वो realize करती है कि वो उससे बात करना चाहता है लेकिन वो नहीं कर पाता. So she knelt and fed him gently from the porcelain spoon, and after that she fed him. He ate unwillingly but still he ate. उसका खाने को मन नहीं था लेकिन वो उसे खाता है. Now you will soon be strong, she said, not liking him yet moved to comfort him. अभी भी उससे वो पसंद नहीं है, because all the time there was a realization that was nagging, that was irritating, that the man was the prisoner of war, the man was their enemy, कि वो उनका दुश्मन है. So when Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up. तीसरे दिन जब सदाओ आता है, देखता है कि यंग मैन जो है सिटिंग पोजीशन के अंदर है, और इस कोशिश की वजह से उसके चेहरे का रंग ब्लडलेस हो गया है, येलोइश हो गया है. तो सदाओ चिल्लाता है कि लेट जाओ, क्या तुम मरना चाहते हो, और आलमस जो है वो उसको फोर्स करता है, हालांकि जेंटली करता है बट स्ट्रांगली, कि उसे लेट जाना चाहिए. एंड आफ्टर दैट ही एग्जामिन द वुंड, उसके जख्म को वो चेक करता है. एंड देन ही सेड यू मे किल योर सेल्फ, कि तुम अपने आप को शायद मार डालते अगर आप इस तरीके का कोई एफर्ट करते हैं. वो उसे डांट लगाता है, स्कोल्डेड. व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद मी, द बॉय मटर्ड मीन्स स्पोक इन अ वेरी लो वॉइस. ही सेज कि आप लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो. और जब वो ऐसा बोलता है तो वो सदाओ को वो एक छोटे बच्चे की तरह लगता है, हार्डली 17 ईयर ओल्ड. आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर टू army or the police.
सदाओ इस चीज़ का कोई जवाब नहीं देता। एग्ज़ामिनेशन उसको चेक करता है और उसके बाद सिल्क की क्विल्ट जो है वो उसके ऊपर डाल देता है। ही सेज़ कि मुझे भी नहीं मालूम कि मैं क्या करने वाला हूँ। आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, कि मुझे तुम्हें पुलिस को हैंड ओवर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम एक प्रिजनर ऑफ वॉर हो। एंड देन ही सेड कि मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ही कुड सी कि जो यंग मैन है ही वॉज ट्राइंग टू स्पीक, बट ही स्टॉप्ड हिम फ्रॉम सेइंग एनीथिंग। एंड इवन ही आस्क्ड हिम कि मुझे अपना नाम भी मत बताना जब तक मैं तुम्हें नहीं बोलता। वाई? बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू गेट इमोशनली अटैच्ड विद द मैन। सो दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट। थोड़ी देर एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद यंग मैन अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लेता है। एंड ही सेड ओके, ही डिड नॉट लाइक दिस एक्चुअली। एंड आउटसाइड द डोर हाना वॉज वेटिंग देयर। और जो हस्बैंड हैं सदाओ हैं, वो उनको समझ आ जाती है कि हाना वॉज फेसिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सदाओ, यूमी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैनॉट स्टे इफ़ वी हाइड दिस मैन हियर एनी मोर, कि यूमी ने मुझे ये कहा है कि अगर हम इस आदमी को अपने घर रखते हैं तो वो घर पर नहीं रहेंगे। एंड शी टेल्स मी दे आर सेइंग दैट यू आर एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका। और यूमी जो है वो ये कह रही है कि हम लोग क्योंकि अमेरिका में रहे हैं तो हम अपने देश को भूल गए हैं और उन्हें ये लगता है कि हमें अमेरिकन पसंद हैं। और सदाओ इस बात को बहुत हार्शली लेता है। एंड ही सेड कि ये सच नहीं है, अमेरिकन्स हमारे दुश्मन हैं, लेकिन बिकॉज आई एम अ डॉक्टर एंड आई एम ट्रेंड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट, कि मुझे ये ट्रेनिंग दी गई है कि अगर मैं किसी को बचा सकता हूँ तो मुझे बचाना चाहिए। लेकिन हाना जो है शी सेज कि सर्वेंट्स इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। एंड सदाओ ऑल्सो एग्रीड। नीदर सीम्ड एबल टू से मोर। दोनों उसके बाद कुछ नहीं बोल पाते और इसी तरीके से घर का काम चलता रहता है। सर्वेंट और वॉचफुल हो जाते हैं, उनकी हर एक्टिविटी को ध्यान में रखते हैं। उनकी जो कर्टसी थी वो वैसी ही थी, लेकिन आइज़ के अंदर उनका पेयर मीन्स Sadao and his wife, it was cold. There was no expression. It means they don't like the idea that they were sheltering a man who was the enemy of their country. द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग, कि ये साफ दिखाई देता है कि मास्टर को क्या करना चाहिए। जो गार्डनर हैं ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ और स्पेशलिस्ट हैं मॉस गार्डन के। उन्होंने सदाओ के फादर के लिए एक मॉस गार्डन भी बनाया था जो कि फाइनेस्ट गार्डन है जापान के अंदर। और हमेशा उस गार्डन को इतनी केयर से रखते थे, इस साफ़ सुथरा रखते थे कि कोई भी पाइन नीडल कहीं उस वेलवेट को ख़राब ना कर दे। सो ही कॉन्टीन्यूसली क्लीन्ड इट। माई ओल्ड मास्टर सन नोज़ वेरी वेल वट ही ऑट टू डू। एंड ही सेड कि जो मेरे ओल्ड मास्टर हैं उनका बेटा जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। एंड व्हेन द मैन वॉज सो नियर टू डेथ, कि वो बंदा जब मर रहा था तो मास्टर ने उसे मरने क्यों नहीं दिया। द यंग जो कुक है said contemptuously means with hatred, कि जो हमारे यंग मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, उनको शायद अपनी स्किल पे बहुत प्राउड है कि वो किसी की भी ज़िंदगी बचा सकते हैं। और उसके बाद कुक जो है इट्स स्प्लिट अ फाउल नेक स्किलफुली, और वो ये मानते हैं कि जो ब्लड है वो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। तो जो बर्ड है जिसकी उन्होंने नेक अलग कर दी है, उसका ब्लड जो है वो विस्टेरिया वाइन यानी एक बेल है उसकी रूट्स के अंदर वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये ब्लड बेस्ट फर्टिलाइज़र है, तो वो वेस्ट नहीं करना चाहते। देन यूमी हु यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, शी सेड कि Sadao should take care of the family and the children and they must think कि बच्चों के बारे में उन्हें सोचना चाहिए और उनका फेट क्या होगा अगर फादर जो है ही इज़ कंडेम्ड एज अ ट्रेटर, गद्दार के रूप में अगर उनको पनिशमेंट मिल जाती है। सो व्हाट वुड हैपन विद द चिल्ड्रन। They did not try to hide. Now, whatever the discussion was going on between the servants, they were not trying to hide. What they said
फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हाना. दे नोइंगली वॉन्टेड हाना कि हाना ये सब सुन ले, जो कि पास में ही खड़ी थी, और वो जानबूझकर बोल रहे थे. दे वर राइट. हाना जानती थी दैट दे ऑल वर राइट, बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच हर सेल्फ शी कुडंट अंडरस्टैंड. इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग. वो खुद को समझ नहीं पा रही थी. ऐसा नहीं था कि वो प्रिजनर से इमोशनली कनेक्ट हो गए थे. शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर. वो कल भी उनके लिए एक प्रिजनर था, और शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे व्हेन ही हैड सेड. वो उससे पसंद नहीं करती थी. इवन यस्टरडे जब उसने हाना को अपना नाम बताया, दैट हिज नेम वॉज टॉम, शी ओनली बोर्ड अ बिट. चुकती है लेकिन कोई जवाब नहीं देती, कुछ इंक्वायर नहीं करती, और रियलाइज़ करती है कि टॉम को बुरा लगा है. दैट शी डिड नॉट रिप्लाई, बट शी डिड नॉट ट्राई टू असॉज द हर्ट, यानी कम करने की कोशिश नहीं करती, बिकॉज शी डिड नॉट लाइक द मैन. एज़ फॉर सदाओ एवरी डे, और जहाँ तक सदाओ की बात है, डेली वो उस वुंड को चेक करता है, और जो लास्ट स्टिचेस हैं दैट हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर. और उसे लगता है कि विद इन 15 डेज़ जो है यंग मैन बिल्कुल ठीक हो जाएगा. सदाओ वापस अपने ऑफिस में आता है, लेटर टाइप करता है चीफ ऑफ पुलिस को, और ये बताता है कि 21 डे ऑफ फरवरी को एक एस्केप प्रिजनर वॉज वॉश्ड अशोर ऑन द इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. इतना ही टाइप करता है, और उसके बाद सीक्रेट ड्रॉर के अंदर उस अनफिनिश्ड रिपोर्ट का रख देता है. ऑन द 7th डे आफ्टर दैट, दो चीज़ें होती हैं उनके घर में. सारे के सारे सर्वेंट्स घर छोड़ के चले जाते हैं, अपना सामान भी ले जाते हैं. हाना सुबह उठती है, देखती है घर का कोई काम नहीं हुआ, एंड शी रियलाइज दैट व्हाट इट मेंट, कि जो सर्वेंट्स हैं वो क्या कहना चाहते हैं. शी वॉज डिसमेड, निराश होती है, उससे ज़्यादा कहीं डर जाती है. लेकिन क्योंकि वो एक मिस्ट्रेस है, तो उसकी जो प्राइड है ये उसे अलाउ नहीं करती टू शो इट टू द सर्वेंट. इंस्टेड शी बोड हर हेड ग्रेसफुली, एंड जब सर्वेंट्स उसके एक एक करके उसके पास आते हैं, गुड बाय बोलते हैं, सबको वो पे करती है, लेकिन वो उनको अपने इमोशंस या किसी को नहीं बोलती वहाँ रुकने के लिए. एंड दे ऑल वर क्राइंग, सब रो रहे होते हैं, लेकिन हाना नहीं रोती. कुक एंड द गार्डनर जो हैं वो तब से उनके घर में हैं जब से सदाओ एक छोटा बच्चा था. और यूमी बहुत चिल्लाती है, बहुत रोती है, क्योंकि वो बच्चों से बहुत अटैच्ड है. इतना दुखी होती है कि एक बार जाने के बाद दौड़कर वापस आती है हाना के पास. And she said, if the baby misses me too much tonight, send for me. कि अगर बेबी मुझे मिस करे तो आप मुझे बुलवा लेना. I am going to my own house. मैं अपने ही घर में जा रही हूँ. And you know where it is. आपको मालूम है मेरा घर कहाँ है. हाना मुस्कुराती है, said thanks to her, and she told to herself actually कि अगर बेबी रोएगा तब भी वो यूमी को नहीं बुलवाएगी. She made the breakfast. सदाओ helped with the children. दोनों कुछ नहीं बोलते, दोनों को मालूम है सर्वेंट्स जा चुके हैं. और जब बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, उसके बाद वो सदाओ के पास आती है. एंड शी सेड कि जो सर्वेंट्स को दिखाई देता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें वो क्यों नहीं दिखाई देता. वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज़, हम दूसरे जापानीज़ से अलग क्यों हैं. लेकिन सदाओ का कोई जवाब नहीं है. बट अ लिटिल लेटर ही वेंट इन टू द रूम, वो कमरे में जाता है, वेयर द प्रिजनर वॉज, एंड सेड ब्रस्कली, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, कि आज आप अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं, और मैं चाहता हूँ आप 5 मिनट खड़े होइए, और अगले दिन आप 10 मिनट, और इस तरीके से आपकी जो स्ट्रेंथ है धीरे धीरे वापस आ जाएगी. और उसके बाद he could see कि there was the terror in the eyes of the young boy. चेहरा पीला है. and he said okay, evidently he was determined to say more. दिखाई दे रहा था कि वो कुछ और कहना चाहता है. and he at first thanked him for he said that I want to thank you because you saved my life. But सदाओ said
कोल्डली कि डोंट थैंक मी टू अर्ली। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर, फिर से उससे डर दिखाई देता है, जो जैसे कि कोई छोटा सा जानवर होता है, उसके जो स्कार्स हैं नेक पे वो रेड हो जाते हैं। एंड सदाओ पूछता नहीं है लेकिन उस स्कार्स को नोटिस करता है। इन द आफ्टरनून फर्स्ट थिंग क्या थी कि सारे सर्वेंट्स चले जाते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या हुई उसी दिन दोपहर में कि हाना अनअकस्टम्ड लेबर मीन्स वो काम जिसकी उसे आदत नहीं है, तो वो उस काम में बिजी थी। एंड शी सॉ अ मैसेंजर, और वो ऑफिशियल यूनिफॉर्म के अंदर है। जैसे ही वो उसको देखती है, his hands went weak and she could not draw her breath, सांस नहीं ले पाती। उसे लगता है कि सर्वेंट्स ने ज़रूर रिपोर्ट कर दिया होगा, इसलिए ऑफिशियल जो है यूनिफॉर्म के अंदर आए हैं उन्हें अरेस्ट करने के लिए। और वो सदाओ की तरफ दौड़ती है जो कि अपने ही रूम के अंदर है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ पहुँचती बोल पाती, शी वॉज स्टैंडिंग देयर गैस्पिंग देयर, लंबी सांसें ले रही हैं कि The man reached there and she pointed at him helpless। वो कुछ नहीं बोल पाती, सिर्फ पॉइंट आउट करती है। Sadao looked up from his book. He was in his office, the other partition of which was thrown open to the garden for the southern sunshine। एक partition जो है जो कि garden की तरफ है, जिस तरफ से sunshine आता है, that was open। And he asked the messenger कि क्या बात है। And what did he say कि जो old general है, he is in pain and you are to come to the palace, कि आपको पैलेस में आना होगा, old general को प्रॉब्लम है। हाना की सांस में सांस आती है। एंड शी सेड इज़ दैट ऑल, क्या यही था। अब मैसेंजर हैरान हो जाता है कि जनरल इज़ इन क्रिटिकल कंडीशन एंड द लेडी इज़ सेइंग कि इज़ दैट ऑल। एंड ही सेड इज़न्ट इट इनफ, क्या ये काफ़ी नहीं है। एंड शी फेल्ट सॉरी। एंड व्हेन सदाओ केम टू से गुड बाय, शी वॉज इन द किचन बट डूइंग नथिंग। बच्चे सो चुके थे, वो सिर्फ रेस्ट करने के लिए बैठी थी, थक गई थी, काम से नहीं, उस डर से जो उसे ऑफिशियल को यूनिफॉर्म में देखकर हुआ। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड। और शी टोल्ड हर हस्बैंड कि मुझे लगा वो तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं, तो मैं इसलिए डर गया था। ही गेज डाउन इन टू हर एंक्शियस आइज, वो उसकी चिंता भरी नज़रों में देखता है। एंड ही टोल्ड हिमसेल्फ कि मुझे इससे छुटकारा पाना होगा किसी भी तरीके से। और उसके बाद वो जनरल के पास जाता है, जनरल हु वॉज वेरी वीक, एंड ही सेड आई अंडरस्टैंड फुली, दैट इज़ बिकॉज आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन, सो फ्यू जापानीज हैव। जनरल वॉन्टेड टू टेल सदाओ कि एज अ डॉक्टर वो एक बहुत स्किलफुल डॉक्टर है, क्योंकि उसने प्रिंसटन से डिग्री ली है जो कि बहुत कम जापानीज़ के पास है। Sadao said, I care nothing for the man, Excellency. It means he is telling general about the prisoner of war. लेकिन मैंने उसका ऑपरेशन किया है, he says। तो जनरल को लगता है he says कि it only make me feel you are more indispensable to me, कि तुम मेरे लिए और भी essential हो जाते हो। जब तुम किसी की भी ज़िंदगी बचा सकते हो, इट मीन्स कि यू आर वेरी वेरी स्किल्ड। और तो मैं यू थिंक, एंड ही टोल्ड हिम कि एज अ डॉक्टर तुमने मुझे बताया है कि जो अटैक मुझे आज आया है, मैं एक और ऐसा अटैक्स बेयर कर सकता हूँ, उसके बाद नहीं। तो सदाओ बोलता है कि एक से ज़्यादा नहीं। देन जनरल सेड कि मेरे लिए और भी ज़रूरी हो जाता है कि मैं सदाओ की जो लाइफ है उसको बचा कर रखूँ। क्यों? क्योंकि तुम मुझे बचाओगे। सो आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, विच मीन दैट ही वॉज इन डीप थाट। उसके बाद उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो जाता है, जो ये दिखाता है कि वो बहुत सोच रहे हैं। एंड देन ही सेड कि यू कैन नॉट बी अरेस्टेड। मान लीजिए तुम अरेस्ट हो गए, तुम्हें पनिशमेंट हो जाता है, डेथ सेंटेंस हो जाता है, और नेक्स्ट डे मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी तो। सदाओ सजेस्टेड कि सर और भी सर्जन्स हैं। जनरल रिप्लाइड कि जो बेस्ट सर्जन हैं हैज़ बीन ट्रेंड बाय जर्मन एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ़ आई डाइड, कि जो जर्मन होते हैं वो सक्सेसफुल सर्जन होते हैं, और वो अगर पेशेंट मर भी जाए और उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, देन दे सेड वो
एज अ पर्सन किसी की केयर नहीं करते, वो अपनी स्किल में ज़्यादा सबमर्ज्ड होते हैं. ही साइड, इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रुथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी, कि हम इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते. दैट इज़ जर्मन रुथलेसनेस यानी कि क्रूअल, और जो अमेरिकन के अंदर इमोशंस हैं उनको कंबाइन करने की ज़रूरत है. Then you could turn your prisoner over to execution and yet I could be sure. और जो जनरल हैं वो मानते हैं कि चाहे सदाओ प्रिजनर ऑफ वॉर को हैंड ओवर कर दे आर्मी को, इवन देन वो उस पर इतना विश्वास करता है कि वो उसे मरने नहीं देगा. एज अ जापानीज़ कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट, क्या तुम जर्मन की रुथलेसनेस और अमेरिकन्स के अंदर जो सेंटिमेंटलिटी है इसे कंबाइन नहीं कर सकते. सदाओ गिव अ स्माइल, कि सर मैं कोशिश करूँगा. इट मीन्स द जर्मन्स आर वेरी वेरी स्किलफुल, दे आर वेरी गुड सर्जन्स. सदाओ स्माइल, आई एम नॉट क्वाइट श्योर ही सेड, बट फॉर योर सेक सर आई विल ट्राई. और जनरल सर हिलाता है एंड ही सेड कि मेरे पर टेस्ट मत करना. और अचानक जो है वो बहुत वीक महसूस करते हैं, और अगेन ही एंड ओवरवेल्म्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि वो एक ऑफिशियल हैं, उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. सडनली वो उसे रियलाइज़ होती हैं एंड ही रियलाइज्ड कि हर विक्ट्री के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं. एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और रियलाइज़ करते हैं कि इस सिचुएशन में जो वो बीमार है तो दाऊ के घर के बिल्कुल सामने आकर जो है अ प्रिजनर ऑफ वॉर वॉश्ड एशोर ऑन हिज डोर स्टेप, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. Thank you. Very soon I will be back with the third part of this chapter. Thank you. Thank you once again.